Welcome back, students. So first of all, thank you very much for your such appreciation and likes and subscribes. That gives me energy, enthusiasm to make the new video. So keep it up. So thanks a lot once again. So today we will start the new topic, that is the sense of collective belonging. Yes, student, sense of collective belongings. Yes, student, as everybody knows that India is a very diverse country, multilingual, multi-religious. There are lot of languages, 22 recognized, and other are dialects. So, and religions like Hindu, Muslim, Sikh, Isai. That's why it is written sense of collective. Collective means all Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Jain, Parsi, Bodh, many more. They come together, and all the language diversities to come closer for the movement. But it is not an easy task that need a planned view. So how it could be done? Gandhi ji and other freedom fighters, they make a lot of efforts to create an image of India. Because if, for example, if I am saying you have to fight for this and that, then sometimes people will say no, maybe. But if anybody says you have to fight for your mother, then what's happened? Everybody is ready to fight for. So India, first of all, what's happened? India was portrayed. That's why, like the Bharat Mata. Bharat Mata. Just like in Germany, Germania, Mariana, many others are there. So for India, the Bharat Mata was portrayed. Why? Because now this is our motherland. Mata means हमारी ये country है जिसे हमें इसे protect करना है. अब ये country पूरे peoples की है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी कम्युनिटीज की इक्वली है. तो हर किसी को अपनी मदर के लिए लड़ने में एक एनर्जी आ गई. अब भारत माता तो इमेज एक कम्युनिटी के लिए है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, किसी भी तरीके से उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो भारत माता की इमेज दी गई. तो भारत माता की जो इमेज है फर्स्ट टाइम बनाई गई वो अबिंदनाथ ने बनाई. ओके, बट एस्थेटिक मतलब एक डिवाइन फीचर उनका भी आ रहा था जिसमें उन्होंने लोटस लिया हुआ है. तो कुछ कम्युनिटीज ने ये कहा कि ये भारत माता तो एक ग्रुप की है, सपोज लोटस लिया है तो वो लक्ष्मी जी जैसे हिंदूज की हैं, बाकी कम्युनिटीज उससे एलाइनेटेड अलग हो गए. तो फिर दूसरी बार भारत माता को पेंट किया गया, उनकी पोर्ट्रेट बनाई गई, जो कि आपकी बुक में पेपर में आएगा कि बाय हुम भारत माता वाज प्रिंटेड. तो आप बिना किसी डाउट के लिखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी. बंकिम चंद्र चटर्जी. यस स्टूडेंट, चटर्जी एंड चट्टोपाध्याय. इन केस कहीं कहीं चट्टोपाध्याय लिखा है, then don't worry about. Chatterjee and Chattopadhyay both are same personality. Clear na? Both are same personality. So when he painted Bharat Mata, then there were no issues to anybody because she has a very calm face and the background of Bharat Mata with a map of India, and she has a flag of India. So by whom the flag was designed? So flag was designed by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. When it was designed? 1921. Before 1921 too there were a flag. It doesn't mean कि इसके पहले कोई flag नहीं था. There was a flag. And the color of before 1921, the color of the flag were WHITE, white, green and yellow. Okay, with 8 provinces. 8 provinces means there were the in the period of Asoka, the 16 Mahajanpadas were there. As time period of the Britishers, they make 8 provinces like Bengal and others. So these were by the Britishers, and the 8 provinces represent the supremacy of the empire. But in 1921, Gandhiji designed the Swaraj flag. Swaraj
फ्लैग, फ्लैग फॉर स्वराज, अपनी सेल्फ रूल, अपनी कंट्री का एक फ्लैग, क्योंकि हमारी कंट्री है, हमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हुआ फ्लैग होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आज हमारी कंट्री का फ्लैग है तिरंगा, सेम कलर है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, येलो की जगह पे व्हाइट, ग्रीन एंड रेड। ओके, प्लस हमारे इस फ्लैग में जो गांधी जी ने डिजाइन किया, इस फ्लैग में उन्होंने बीच में इस सेंटर पोजीशन में उन्होंने ये रखा चरखा। पहले ये एकदम चरखे जैसे दिखता था, बाद में इसे मॉडिफाई किया गया। अब सिर्फ यहाँ पे ये स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स। जो 24 स्पोक्स क्या कहते हैं कि हमें 24 आवर्स काम करना है। अगर हम 24 आवर काम नहीं करेंगे तब क्या होगा कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, ठीक है ना। अगर हम 24 आवर काम नहीं करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस क्या है, रुक जाएगी। तो इसके लिए हमें 24 आवर्स काम करना है। तो अब जो ये ग्रीन कलर है, ये प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए थी। वो उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी प्रॉस्पेरिटी कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी। व्हाइट कलर पीस के लिए है कि हमें वायलेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। एंड रेड कलर सैक्रिफाइस, क्योंकि लास्ट में गांधी जी ने डू एंड डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में उन्होंने कहा कि डू एंड डाई, अगर अपने देश के लिए हमें आजादी पानी है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। इवेंट सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का फॉर्मेशन किया था, उन्होंने भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसके लिए ये रेड कलर, सैफरन कलर जो बेसिकली यहाँ पे यूज किया गया है। तो अब इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, ये तो एक सेक्शन है कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का। दूसरे सेक्शन में आप देखेंगे कि जो कम्युनिटीज हैं, इलिटरेट कम्युनिटी, अभी तो इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा सेक्शन देखते हैं, जो इलिटरेट कम्युनिटी है, ये लिटरेट कम्युनिटी के लिए, इलिटरेट कम्युनिटी के लिए कलेक्टिवली है, लेकिन जो टोटली इलिटरेट हैं, हम उनको किस तरीके से समझा सकते हैं। तो हम उनको समझाने के लिए फोकलोर्स, फोकलोर्स में सबसे फेमस कौन सा था, वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब भारत की माता की जय, वंदे करना, उनका चरण छूना, उनकी आराधना करना। तो ये इन्होंने, ये जो बंकिम चंद्र हैं, इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा है, और ये इनकी एक नॉवेल है आनंद मठ, इसका ये एक हिस्सा है वंदे मातरम, ठीक है ना। तो आनंद मठ में इन्होंने ये लिखा हुआ है, जिससे सारी कम्युनिटीज को वो इकट्ठा कर सके, सारी कम्युनिटी को समझा सके। तो ये जो भी मूवमेंट्स, जो भी चीजें चलाई गई हैं, सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। दूसरे पर्सन है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी पूरी कंट्रीज को, जैसे आप देखिए पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक है ना, जो जन गण मन हमारा जो नेशनल एंथम है, जन गण मन, उस टाइम का ये भी फोकलोर था। मतलब कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये उन्होंने ब्रिटिश अंपायर के लिए उनकी प्रेज, प्रशंसा के लिए लिखा था, लेकिन ये गलत बात है। जनगण मन अधिनायक जय है, जैसे अधिनायक लोग क्या क्रिटिसाइज करेंगे कि उन्होंने ब्रिटिश अंपायर के लिए लिखा था, जबकि ये गलत है। अधिनायक मतलब ये कह रहे हैं कि जन गण मन, मतलब जो हमारी पूरी एंटायर कम्युनिटी है, सबके साथ में चलने से हमें विजय मिलेगी। इसीलिए उन्होंने जब कहा है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, मतलब सारी ही सेक्शंस जब इकट्ठा मिलेंगे तब जाकर के हमें आजादी मिलेगी। तो इस तरीके से लोगों में एक एनर्जी आ गई। उस वक्त लोग जब फ्लैग लेके चलते थे, इंडिया का ट्राई कलर का फ्लैग, और ये गाने गाते थे, तो लोगों में एक एनर्जी भर जाती थी, जिससे पूरी की पूरी कम्युनिटी, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने बारे में ना सोच करके भारत माता के बारे में सोच रहे हैं और उनको आजाद कराने के लिए जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत माता गुलाम है, उनके पैरों में बेड़ियां हैं। अब वो तभी खुलेंगी जबकि हमारा भारत आजाद होगा, ब्रिटिशर्स हमारे भारत को आजाद कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कम्युनिटीज आपने बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, अब जो सदर्न पार्ट है, साउथ पार्ट इंडिया का, जैसे केरल हो गया, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है नतेशा शास्त्री, ठीक है।
इनके बारे में भी, क्योंकि थोड़ा सा हम हर किसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट मैं चाहती हूँ छोटा सा बनाना, पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज अ टीचर मुझसे हो ही नहीं पाता कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ दूं। तो देखिए, जो साउथ पार्ट है वहां से एक इंपॉर्टेंट पर्सन है नतेशा शास्त्री, ठीक है ना, जिन्होंने फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया लिखा। ये किस लिए इन्होंने ऐसा किया? क्योंकि सारी सेक्शंस, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, सारे सेक्शंस को हर एक जगह के पीपल आजादी दिलाना चाहते हैं। और उस सेक्शन में इनका, क्योंकि इनका नाम है वहां पे, इसलिए पर्टिकुलर पर्संस का नाम मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ ही पीपल ने रिवोल्ट किया, सारी कम्युनिटीज ने, करोड़ों की जनता ने ऐसा किया। लेकिन एक एक इंपॉर्टेंट लीडर किसी भी सेक्शंस का इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सब कलेक्टिव बिलोंगिंग से इतना ही स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट। यस स्टूडेंट, सो द न्यू टॉपिक इज क्विट इंडिया मूवमेंट। एक्चुअली इन आवर बुक, in NCERT book, it is in a very small as a storyboard, but it is very important movement by Gandhi ji, and even not for one single community, for entire India. That's why we need to know, before quit India movement, as I told, collective belonging, so role of many people, even they reintroduce the history too, means they rememorize, like the Chhatrapati Shivaji, Maharana Pratap, they were also the part of our India. But now we will listen about the Quit India movement. Quit India movement. Yes student, हिंदी में इसे बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन. So the Quit India movement that was launched on 12th March 1942. अब ये बेसिक डेट 12 क्यों बन गई? क्योंकि एक मिशन इंडिया में अराइव हुआ था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, और इसके जो लीडर रहे हैं वो कौन थे? चर्चिल। याद रखिएगा, चर्चिल कौन है? क्रिप्स मिशन के लीडर हैं। तो चर्चिल का अराइवल इंडिया में, इंडियन का डोमिनियन स्टेटस का डिस्कशन, उनके पॉलिटिकल सिस्टम का डिस्कशन इंडियन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हमारी कंट्री, हमारे लोग और हमें ही डिसीजन लेने के राइट्स ना हो, ये एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन है। तो इसके लिए इंडियंस ने इसका अपोज किया। इस टाइम पे गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लीडर्स जो मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, दोनों ग्रुप के लीडर्स हैं, सबने मिलकर के साथ लिया कि हमारी इंडिया को आजादी मिले। लेकिन इनकी बातों को कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद भी ये डटे रहे कि हमें ही इंडिया के लिए सब कुछ करके देना है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे एजुकेशन हो। तो गांधी जी ने जब इधर इन्होंने नहीं सुना, तो 14 जुलाई, दूसरी डेट है 14 जुलाई, हर बार 1942 ही रहेगा, मंथ बस चेंज हो रहा है। अब यह वर्धा एक प्लेस है, यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई। आईएनसी जो कांग्रेस का रोल है, यहाँ पे उनकी जो लीडरशिप है, अध्यक्षता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं। इन्होंने जो जुलाई में क्या किया, मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया और क्रिप्स मिशन के फेलियर की बात कही और रिजेक्ट किया कि हमें आपसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, अपने डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। लेकिन अभी तक ये चर्चिल जो है, ये बहुत जिद्दी किस्म के हैं। इन्होंने कहा भैया हमको तो आपकी बात नहीं माननी, हम ही तो सब कुछ आपके लिए करेंगे। जैसे हम आपको समझाते रहते हैं कि आप सब पढ़ लो, लेकिन लगता है जाने दो, अभी बाद में पढ़ लेंगे पेपर के टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी इसको आप ध्यान से पढ़िए। तो जब वर्धा में ये मीटिंग हुई और इन्होंने फिर से नहीं माना ये बात, तो गांधी जी ने कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अभी तक गांधी जी नॉन वायलेंस के बहुत बड़े ही फॉलोवर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब 1942 वर्धा मीटिंग के बाद उन्होंने कह दिया कि अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का, जहां पे हमें अब कुछ ना कुछ करके दिखाना है। इसलिए ये डेट्स याद रखिएगा। अब जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डेट है क्विट इंडिया मूवमेंट की, ठीक है ना, पूरे चैप्टर की नहीं है वो।
तो क्विट इंडिया मूवमेंट की है वो 8 अगस्त है। फिर से 1942, ठीक है ना, जुलाई में मीटिंग हुई, इन्होंने सुना नहीं। अब 8 अगस्त 1942 को मीटिंग हुई। अब ये कहां पे हुई? बॉम्बे में। ये जो मुंबई है ना, इसी को पहले बॉम्बे कहा जाता था। तो बॉम्बे में जब ये मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में इन्होंने क्या किया? गांधी जी ने कहा अब एक्शन टाइम है, और उस एक्शन टाइम में उन्होंने कौन सा एक्शन लिया? भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक करी, एंड डू और डाई। कोई पूछे कब लॉन्च हुआ है? तो 1942 बॉम्बे की मीटिंग में गांधी जी ने खुद लॉन्च किया। जो अब तक अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस के बहुत बड़े फॉलोवर है, उन्होंने कह दिया कि अब टाइम आ गया है डू एंड डाई, मतलब अपनी कंट्री के लिए कुछ करो या फिर सैक्रिफाई कर दो। मरो मतलब ऐसे नहीं कि मर जाओ, मतलब सैक्रिफाई करने के लिए कहा, ठीक है ना। तो जब गांधी जी एक पीसफुल लीडर ऐसी बात कहते हैं, तो जो मॉडरेट लीडर थे उन्हें तो सरप्राइजिंग था ही, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट मतलब नरम दल के नेता, एक्सट्रीमिस्ट मींस गरम दल के नेता, उनमें एक एनर्जी का पावर आ गया, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है, और सबके सब अभी तक मन से ज्वाइन करते थे, बट अब फोर्सफुल उन्होंने गांधी जी को अपना लीडर मान लिया, और सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की जो फॉर्मेशन किया है, जर्मनी तक गए, हिटलर से भी हेल्प ली उन्होंने, तो वो छुपे भले रहे लेकिन पूरी कंट्री को उन्होंने एक बेस दिया। अब यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स हैं उनके बारे में, उनका नाम भी हमें जानना जरूरी है स्टूडेंट। जैसे आप इन लीडर्स के नाम याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट ये रहेगा कि दिमाग में थोड़ा सा रहेगा तो हमें करने की एक एनर्जी मिलेगी और फेथ बना रहेगा कि हाँ हमने ये किया। इसमें से देखिए ये कौन है? जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है जिन्होंने गांधी जी के इस मूवमेंट में बहुत ही एनर्जी के साथ सपोर्ट किया एंड क्विट इंडिया मूवमेंट को एक प्रोग्रेस दे दी। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो हमारा बेस है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप वीडियो क्वालिटी पे आप ध्यान नहीं देंगे, चैप्टर पे ध्यान देंगे, क्योंकि प्रोफेशनली टीचर तो हूं मैं, बट वीडियो प्रोफेशनलिस्ट मैं नहीं हूं। तो मैंने एक एफर्ट किया है बच्चों के लिए कि मैं उन्हें समझा सकूं, बता सकूं। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। कमेंट बॉक्स में चैट ओपन है, आपको जो समझ में नहीं है, अभी 14 को पेपर है तो आप बोल सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप रहा वायलेंस के लिए, तो कम्युनिटी एक एग्रेसिव हो गई, उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगाने का ठान लिया। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। अब जो मैप है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैप बताने जा रही हूँ, तो आप सब मैप लेके बैठे, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, और उसे ध्यान से सुने। सो थैंक यू।